Welcome to Word Meaning series where we today cover part 2 of our letter S. And trust me, we are only getting sharper from here. If you thought the first set was strong, this one is smarter, sneakier, and way more expressive. These are the kind of words that don't just improve your English, they upgrade your thinking and expression. So stay consistent, stay curious, and get ready to spot, speak, and slay these words with confidence. Let's get into it. The first is siesta and this is a short nap taken in the afternoon. Siesta रेफर करता है एक short and refreshing nap जो कि आप usually afternoon में लेते हो, especially after lunch जब आपकी body energy like low feel कर रहे होते हो, है ना? And taking the siesta basically helps in restoring energy, improving focus and boosting productivity for the remaining part of the day. ये कोई long sleep नहीं, एक छोटा सा nap है, ठीक है? Example: I took a quick siesta before starting my work again. Now we have similitude and this means similarity or resemblance between things. ये वर्ड का बेसिकली मतलब होता है जब दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों में रिजेम्बलेंस है, सिमिलैरिटी है, कोई चीज़ें एक जैसी हैं, ठीक है, इवन इफ दे आर नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल इन एवरी एस्पेक्ट, ठीक है. ये वर्ड यूज होता है टू हाईलाइट सटल और डीपर कनेक्शंस जो कि इमिडिएटली ऑब्वियस ना हो एट फर्स्ट ग्लांस, ठीक है. ये वर्ड राइटिंग, एनालिसिस एंड कंपैरिजंस में यूज किया जाता है and it allows us to connect ideas, behaviors, or appearances in a more thoughtful and detailed way. Example: there is a clear similitude in how they handle pressure. Now we have sinecure, and this is a position requiring little work but providing income. सिनेक्योर इज अ जॉब और अ रोल जहाँ पे आपको स्टेडी इनकम मिलती है वाइल रिक्वायरिंग वेरी लिटिल एफर्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द पर्सन होल्डिंग इट, ठीक है. ऐसी पोजिशंस जो होती हैं कंफर्टेबल होती हैं इनमें, लेकिन ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी नहीं होता, लर्निंग या फिर स्किल डेवलपमेंट नहीं होता. यू आर गेटिंग अ गुड पे बट आपकी तरफ से एफर्ट लग नहीं रहा, ठीक है, आपकी पोटेंशियल का आपका कंप्लीट यूज नहीं हो रहा. This term is used critically sometimes to point out unfair advantages of system जहाँ पे effort and reward are not balanced, ठीक है. Example: he landed a sinecure through his contacts. Now we have skirmish, which is a minor fight or brief conflict. Skirmish रेफर करता है एक छोटी short lived fight, argument या फिर disagreement जो कि मेजर कॉन्फ्लिक्ट में टर्न नहीं हो रही, ठीक है. फिजिकल एंड वर्बल सिचुएशन दोनों में हो सकती है, जैसे कि फ्रेंड्स या फिर कोलीग्स में आर्ग्यूमेंट हो गई. स्कर्मिशेस जो होते हैं यूजुअली टेम्परेरी होते हैं एंड जल्दी से रिजॉल्व हो जाते हैं विदाउट लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस. एग्जाम्पल: वी हैड अ लिटिल स्कर्मिश बट सॉर्टेड आउट सून. Now we have slander and this means making false spoken statements to damage someone's reputation. Slander का मतलब होता है जब आप किसी के बारे में verbally false information spread कर रहे हो उनकी reputation को harm करने के लिए, ठीक है. That is your intention. ये जनरल गॉसिप से अलग है बिकॉज इट स्पेसिफिकली इन्वॉल्व्स अनट्रू स्टेटमेंट्स प्रेजेंटेड एज फैक्ट्स. ये तो ऐसा था ही, ये तो सच ही है, इसने तो ऐसा कर दिया, ठीक है. ये एक्शंस जो होते हैं सीरियसली किसी के रिलेशनशिप्स, ट्रस्ट या फिर किसी के पब्लिक इमेज को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल: दैट वॉज प्योर स्लैंडर एंड कम्प्लीटली अनफेयर. Now we have slender and this means thin or slim in a graceful way. Slender basically describes something or someone जो कि पतला है, thin है, but it is in an attractive, elegant and balanced manner. ये किस positive sense में use किया जाता है and these are like unlike words that imply weakness or lack of health. ये word describe करता है people, objects or even structures like trees or buildings. ये emphasize करता है beauty को and proportion को rather than just size, ठीक है. बीइंग स्लेंडर ऑफन मीन्स कि आप ग्रेसफुल हो एंड लाइटनेस आप में. एग्जाम्पल: शी हैज सच अ स्लेंडर फिगर. Now we have sluggish and this means slow moving or lacking energy. Sluggish का मतलब होता है एक ऐसा person या फिर thing जो कि बहुत धीरे धीरे चल रही है बिकॉज उसमें एनर्जी नहीं है, ठीक है, एंड कोई मोटिवेशन नहीं है. इट कैन रेफर टू फिजिकल टेंडरनेस और मेंटल डलनेस जहाँ पे फोकस करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है. ये वर्ड कॉमन है आफ्टर हैवी मील्स, लैक ऑफ स्लीप या फिर लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, ठीक है. जब आप लाइक फिटीग्ड हो, बहुत ज़्यादा थके हुए हो, आप में कुछ करने की एनर्जी नहीं है, सो यू आर डूइंग इन अ वेरी स्लो एंड ऐसे मैनर में जहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं, ठीक है. एग्जाम्पल: आई एम फीलिंग रियली स्लगिश टुडे.
नाउ वी हैव स्लम्बर एंड दिस मीन्स टू स्लीप पीसफुली. स्लम्बर का मतलब होता है जब आप एक काम, डीप एंड पीसफुल फॉर्म ऑफ स्लीप ले रहे हो दैट इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस. ठीक है, इट ऑफन कैरीज अ पोएटिक और जेंटल टोन व्हेन डिस्क्राइबिंग रेस्ट. ये नाउन एंड वर्ब दोनों सेंसेस में यूज किया जा सकता है एंड इट सजेस्ट कंफर्ट, रिलैक्सेशन एंड कंप्लीट रेस्टफुलनेस. एग्जाम्पल, शी स्लेप्ट इनटू अ पीसफुल स्लम्बर. गहरी नींद. Now we have slur and this is an insulting or damaging remark. Slur basically एक disrespectful या फिर insulting comment को refer करता है that is intended to hurt someone emotionally. ठीक है, एक पर्सन की आइडेंटिटी, बिहेवियर, बैकग्राउंड, उसकी किसी पर्सनल चीज के बारे में आप कमेंट कर रहे हो. ठीक है, एंड ऐसे रिमार्क्स जो होते हैं ना किसी के रिलेशनशिप को, किसी का मेंटल हेल्थ को लाइक नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, सोशल एनवायरनमेंट में उसको नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है. स्लर्स जो होते हैं ऑफन ऑफेंसिव एंड इनअप्रोप्रिएट कंसिडर किए जाते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल, दैट रिमार्क वाज अ स्लर एंड शुडंट हैव बीन सेड. Now we have sly and this means clever in a secretive or sneaky way. Sly का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि clever है बट अपनी इंटेलिजेंस यूज करके वो उस चीज को छुपा लेता है. ठीक है, या फिर किसी डिसऑनेस्ट वे में अपनी चालाकी दिखाता नहीं है. ठीक है, इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग थिंग्स सीक्रेटली विदाउट अदर्स नोटिसिंग. कि तुम चालू हो, तुम क्लेवर हो बट लोगों को लाइक लगता भी है कि तुम हो बट दे कांट प्रूव इट. ठीक है, दिस वर्ड कैन हैव बोथ प्लेफुल एंड नेगेटिव मीनिंग डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट. एक स्लाई पर्सन जो है इनोसेंट लग सकता है बट हैज हिडन अटेंशन. एग्जाम्पल, दैट वाज अ स्लाई मूव. Next up, we have smear, and this means to spread something messily or damage someone's reputation falsely. स्मेयर का मतलब होता है जब आप किसी चीज को एक मेसी वे में फिजिकली स्प्रेड कर रहे हो या फिर फिगरेटिवली किसी की रेपुटेशन को हार्म कर रहे हो. ठीक है, सोशल कॉन्टेक्स्ट में इट ऑफन इन्वॉल्व्स फॉल्स एक्यूजेशंस और नेगेटिव कैंपेन्स एंड स्मेयरिंग समवन कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड लॉस ऑफ ट्रस्ट. ये इंटेंशनल है एंड अनफेयर है एंड दिस वर्ड रिफ्लेक्ट्स फिजिकल मेस एंड रेपुटेशनल हार्म. Example, they tried to smear his reputation. Now we have smirch and this means to strain or damage someone's reputation. Smirch का मतलब होता है it basically refers specifically to harming someone's reputation or image. ये एक formal और literary context में use किया जाता है and the damage may come from rumors, actions or false accusations. ये एक lasting negative impact छोड़ता है on how someone is perceived. ठीक है, एंड ये फिजिकल एक्शन से ज्यादा रेपुटेशन पे इफेक्ट फोकस करता है. एग्जाम्पल, द रूमर ट्राई टू स्मर्च हर नेम. Now we have smite and this means to strike or hit forcefully. Smite का मतलब होता है जब आप किसी चीज को, किसी पर्सन को हिट या फिर स्ट्राइक कर रहे हो विद अ स्ट्रॉन्ग फोर्स. ये ड्रामेटिक और लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में ज्यादातर यूज किया जाता है एंड इट कैन ऑल्सो इम्प्लाई सडन इम्पैक्ट और पनिशमेंट. ये इंटेंसिटी एंड सीरियसनेस लाता है इन द एक्शन. ठीक है, एग्जाम्पल, ही वॉज स्मिटन बाय द पावरफुल ब्लो. Now we have smother and this means to suffocate or cover completely. Smother का मतलब होता है जब आप किसी को completely cover कर दो कि उसको सांस भी ना आए और वो फंक्शन ना कर पाए ठीक से. ठीक है, लिटरली यूज किया जा सकता है लाइक ब्लॉकिंग एयर और या फिर इमोशनली जैसे कि आप किसी को ओवरवेलम कर दो विद समथिंग. ठीक है, ये वर्ड इम्प्लाई करता है एक्सेस और रिस्ट्रिक्शन. ये एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है और हार्म इफ टेकन नेगेटिवली. एग्जाम्पल, डोंट स्मदर द चाइल्ड, गिव देम स्पेस. उसको इतने ज्यादा अटेंशन मत दो, ओवरवेलम ना करो कि वो परेशान हो जाए. ठीक है, Now we have smolder and this means to burn slowly without flames. Smolder का मतलब होता है जब कोई चीज स्लोली बर्न कर रही है. ठीक है, एंड स्मोक प्रोड्यूस कर रही है बट कोई फ्लेम्स नहीं है उसमें. ठीक है, इट कैन डिस्क्राइब हिडन इमोशंस लाइक एंगर दैट आर नॉट ओपनली एक्सप्रेस्ड एंड ये वर्ड सजेस्ट करता है ऑन गोइंग बीनीथ द सरफेस. ठीक है, एग्जाम्पल, द एंगर कंटिन्यू टू स्मल्डर इनसाइड हिम. Now we have snarl and this means to growl angrily or become tangled.
स्नॉल का मतलब होता है एक एंग्री एग्रेसिव साउंड बाय एनिमल्स और इवन ह्यूमंस व्हेन दे आर इरिटेटेड और हॉस्टाइल. ये इट कैन ऑल्सो डिस्क्राइब समथिंग दैट बिकम्स ट्विस्टेड और टैंगल्ड एंड उसको आप मैनेज या फिर फिक्स करने में उसको डिफिकल्टी हो रही है. ठीक है, ये वर्ड टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और डिसऑर्डर कैरी करता है एंड इट इज ऑफन यूज्ड बोथ लिटरली फॉर साउंड्स एंड फिगरेटिवली फॉर सिचुएशंस. एग्जाम्पल, माई ईयरफोन्स वर इन अ कंप्लीट स्नॉल. Now we have sneer and this means to smile or speak in a mocking way. Sneer का मतलब ना एक ऐसा facial expression या फिर tone जो कि disrespect, sarcasm या फिर mockery show करती है towards someone. ठीक है, ये use किया जाता है to insult or belittle others indirectly. Sneer जो होता है subtle होता है but still it is hurtful. ठीक है, it reflects arrogance and lack of respect. Example, he gave a sneer while commenting. Now we have snobbish and this means behaving as a superior to others. Snobbish describe करता है कैसे person को जिसको लगता है कि वो बाकी से better है based on status, money और appearance. ठीक है, ऐसे लोग जो होते हैं ना दूसरों को नीचा दिखाते हैं, उनको नीचा देखते हैं and avoid interacting with those they consider less important. ठीक है, इसमें आपको arrogance दिखती है, lack of humility दिखती है and this behavior can damage relationships and create distance. ये वर्ड एक नेगेटिव टोन कैरी करता है. एग्जाम्पल, हर स्नॉबिश एटीट्यूड अनॉयड एवरीवन. Now we have snuff and this means to extinguish or inhale powdered tobacco. Snuff का मतलब होता है जब आप आग बुझाओ, ठीक है, आप उसको सडनली स्टॉप कर दो या फिर जब आप पाउडर्ड टोबैको को स्निफ करो सडनली, ठीक है, which when it is inhaled. In everyday language it is most commonly used in the sense of ending something. ठीक है, एग्जाम्पल, she snuffed out the candle. Now we have snuggle and this means to settle comfortably and closely. Snuggle का मतलब होता है जब आप एक warm, cozy and comfortable position में ले करते हो, ठीक है, with someone और या फिर something, ठीक है, when you basically cuddle with them. It is associated with the feelings of safety, affection and relaxation. ये word जो है normally close relationships जैसे कि family या फिर partners में ज़्यादातर use किया जाता है and it creates a soft and comfortable image. ठीक है, इमोशनल वार्मथ एंड फिजिकल कंफर्ट है. एग्जाम्पल, द चाइल्ड स्नगल्ड अप बिसाइड हर. Now we have snub and this means to deliberately ignore or insult someone. Snub का मतलब होता है जब आप intentionally किसी को ignore कर रहे हो या फिर उनको ऐसे treat कर रहे हो जैसे कि वो unimportant है, उनको आप feel करवा रहे हो कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है, इट इज ऑफन डन टू शो डिसअप्रूवल और सुपरियोरिटी. ये बिहेवियर जो है किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर सकता है, रिलेशनशिप्स डैमेज कर सकता है. ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स डिसरिस्पेक्ट एंड रिजेक्शन. ये नोटिसेबल है एंड डेलिबरेट है. एग्जाम्पल, शी कंप्लीटली स्नब्ड मी. Now we have sober and this means serious, calm or not intoxicated. Sober एक ऐसे person को describe करता है जहाँ पे आप calm हो, serious हो, अपने conscious के, अपने thoughts and actions के full control में हो. ठीक है, you are not intoxicated. It is often used to describe someone जो कि alcohol के influence में नहीं है. ठीक है, it can also describe a serious mood or tone. ये रिफ्लेक्ट करता है क्लैरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट इज ऑफन एसोसिएटेड विथ मेच्योरिटी. Example, he gave a very sober response, a serious response. Now we have sobriety and this is the state of being serious or free from intoxication. Sobriety का मतलब होता है जब आप clear headed हो, serious हो, अल्कोहल या फिर डिस्ट्रैक्शन से अफेक्टेड नहीं हो. ठीक है, इट कैन ऑल्सो रिफ्लेक्ट इमोशनल कंट्रोल एंड अथॉरिटी इन बिहेवियर, मेच्योरिटी. ठीक है, ये जो है डिस्कशंस में अपीयर होता है वर्ड अबाउट डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल एंड ये सजेस्ट करता है स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. एग्जाम्पल, कोई बंदा है जो कि अल्कोहल से, ड्रग्स से, इन सब चीज़ों से, सब्सटेंसेस से दूर रहता है, ठीक है, एंड फोकस रहता है, सो ही वैल्यूज हिज सोब्राइटी. Now we have sojourn and this is a temporary stay in a place. Sojourn का मतलब होता है short and temporary stay जहाँ पे आप रुक रहे हो, often for travel, work और rest. ये suggest करता है कि stay permanent नहीं है, formal और literally context में use किया जाता है and it carries a sense of movement and change. कि आप explore कर रहे हो, experience कर रहे हो and you're just there for resting. ठीक है, example, my sojourn in Mumbai was memorable.
Now we have solace and this means comfort during distress. Solace का मतलब होता है जब आप comfortable feel करते हो, relief feel करते हो during times of distress, difficulty or sadness. ठीक है, it can come from people, activity or even memories. ये word emphasize करता है emotional healing and it helps in coping with stress or pain. ये एक सेंस ऑफ पीस प्रोवाइड करता है. ठीक है, एग्जाम्पल, आपको म्यूजिक सुन के जो है अच्छा लगता है, ठीक है, व्हेन यू फील सैड, सो म्यूजिक बिकेम माय सोलेस. Now we have solemn and this means serious and formal in manner. Solemn एक serious, quiet and respectful attitude या फिर environment को describe करता है. Formal events में ज़्यादातर use किया जाता है like ceremonies or important occasions. ये word reflect करता है dignity and seriousness. It can also describe a person's behavior. ये calm and respectful tone create करता है. फॉर एग्जाम्पल, लोग जो है ड्यूरिंग इंपॉर्टेंट सेरेमनीज चुप रहते हैं, दे रिमेन काम, दे रिमेन क्वाइट, कोई हल्ला नहीं मचाते. सो द एटमॉस्फेयर वाज सोलेम. Now we have solicit and this means to ask for something formally. Solicit का मतलब होता है जब आप एक formal request कर रहे हो for something जैसे कि help, information और support. ये एक professional और official context में use किया जाता है and ये word imply करता है polite and structured request. ये business, communication और legal settings पे ज़्यादातर use किया जाता है and it reflects intention and formality. Example, I would like to solicit your advice. Now we have soliloquy and this is a speech made by someone alone expressing thoughts aloud. ये वर्ड ऐसे मोमेंट को रिफ्लेक्ट करता है जब एक पर्सन जब अकेला है तो अपने थॉट्स जो है बोल रहा है. ठीक है, ही इज एक्सप्रेसिंग व्हाट ही थिंक्स. इट इज कॉमनली यूज्ड इन लिटरेचर और ड्रामा. ये वर्ड रिफ्लेक्ट करता है इनर थॉट्स एंड इमोशंस, जो बंदे के दिमाग के अंदर चल रहा है, वो अंदर से क्या सोच रहा है उस चीज को एक्सप्रेस करना. ठीक है, एंड इट अलाउज डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ क्रिएटर्स माइंड. एक रिफ्लेक्टिव एंड एक्सप्रेसिव टोन रखता है. एग्जाम्पल, ही डिलीवर्ड अ पावरफुल soliloquy. Now we have sonnet. A sonnet is a 14-line poem with a specific rhyme scheme. Sonnet जो है एक structured poem होती है जिसमें 14 lines होती है with a particular rhyming pattern. It is often used to express deep emotions like love, ब्यूटी और टाइम. ठीक है, इस ऐसी पोइट्रीज जो होती है ना बहुत पॉपुलर रहती है फॉर सेंचुरीज एंड इट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी विद इन अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि आपकी 14 लाइन की पोएम एंड उसमें ही आपको एक प्रॉपर राइमिंग स्कीम फॉलो करनी है. ठीक है, एंड sonnets are known for their rhythm and elegance. Example, she composed a beautiful sonnet. If you found this video useful, make sure to check out our specially designed vocabulary and grammar books. You can order them directly through our website www.cambriona.com, for which the link is given in the description below. They are perfect for students preparing for exams like CUET, IPMAT, NIFT, BITSAT, NDA, or any other after class 12th entrance exams where English is tested. The first book in this series is a vocabulary book. It's compact, simple, and structured, covering idioms, fixed prepositions, foreign words, and root words. It makes learning more organized, easier, and faster. The second book in this series is a vocabulary workbook. It is designed to help you practice and retain the words from the main vocabulary book. With simple, selective, and varied exercises, it helps you build confidence and use each word correctly. It's the perfect companion for regular practice and effective revision. The third book in this series is a grammar book. It's a focused, practical guide that covers only the grammar concepts most relevant for your exams. Each rule is explained clearly and simply so you can understand and apply it quickly. This book helps strengthen your grammar, remove confusion, and build confidence step by step. The fourth book in this series is a grammar workbook. It offers practical, exam-oriented exercises that focus on areas where students usually make mistakes. In addition, it includes a few concept-building questions that may not be directly asked in your exams but are designed to strengthen your base and remove common confusions so you can apply grammar rules confidently. This workbook is a structured, student-friendly tool created to strengthen your grammar and build real exam-level confidence. If this video helped you, hit the like button and subscribe to the channel to stay updated. Thank you.